Good evening, sir. Sir, Appreciated for your first short speech. Very it is already अंदर हमारा गले के अंदर सिरे की तरह उतर गया. सीरा खाते हैं ना, जी सर. तो थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. The thing is, problem is that if Narendra Modi Sahab was not, is not come as a prime minister, what would have been the future of India? Sir, first of all, I don't want to answer it politically. I would rather answer it academically. Academically, all the institutions in the world has already declared India into fragile five. If the previous dispensation would have repeated, the fragile five would have been a big reality and maybe fragile 3 or fragile 1. But what he did after coming back, the first thing, जैसे मैंने अभी बताया, the last corner of your house which you vacate is a kitchen, and the first corner in the house which you habitate is the kitchen. Same for the nation. The first thing need to be done is economy. So the focus was purely on economics, how to revive the industry, how to revive the NPAs, how to revive, how to cut down the parallel economy which was not paying any tax. It was a cash-based economy running. So government was not getting any taxes, so cannot invest, cannot do social schemes, and a lot of other factors. So the first step was to pick up the economy and put it back on track. At the same time, ensure that your charitra of Bharat also prosper, and the charitra of Bharat is agriculture. Economy doesn't matter if the food is not on the table. And to have a house where a kitchen, an economy, and a food you cook there, the third thing, very most important, is the security of your house. So the focus was farmers and Fauji's. And if you believe in Kautilya Arthashastra, or if you read Kautilya Arthashastra, because unfortunately this nation had been following Western model of economics for last 75 years, whereas India is not America, India is not Europe, it is a totally different nation, unique nation in the world. Every 100 kilometer, 200 kilometer, the rituals, the fooding habit, the dressing sense, everything changes. You cannot have a Western model here. So you need to adopt Kautilya Arthashastra. And Kautilya Arthashastra is, rather than giving a stimulus package to businesses, which will use it to offset their losses, it is better to give the money to bottom of the pyramid and generate a demand. When demand generates, the businessman will take a loan from institution, banks and other, and the middle class would be hired to produce more. And then you have a consumer which is generating the demand. So the entire economic cycle starts. So if your mool question, if it had been repeated, Sri Lanka was only long back. I mean, we would have been an example in the world before Sri Lanka or Pakistan. Next. Please. Sir. सर आपने बहुत अच्छी बात बताई. अभी एक गुजरात का मैं बता सकता हूँ, अहमदाबाद का, कि एक ट्रेंड चला है कि यंग बच्चे सारे फॉरेन जा रहे हैं. और आज जो हम बहुत गर्व करते हैं फलाना इंडियन ओरिजिन का है, ये हो है, वो सारे इंडिया के पैसों से पढ़ के गए हैं. सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडिया? जैसे भी आज अहमदाबाद में भी बहुत सारे, कहीं पे भी जाइए आप, कनाडा चले जाते हैं बच्चे, वहाँ जाके उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं. सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर आफ्टर 20 years?
सर मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखती। मेरी हमेशा से लड़ाई रही है उन लोगों के साथ जो बोलते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अगर दुनिया पे राज करना है तो ब्रेन को तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना, घर में बैठ के तो नहीं होगा, झंडा लाने से यहाँ तो नहीं होगा ना। तो अगर हमारे बच्चे बाहर नहीं है, मैं भी बाहर गया था, ठीक है, मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं वापस आया। लेकिन अगर आज के बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं, तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखती है, क्योंकि यही वो ब्रेन ड्रेन था जिसकी वजह से आज आप बोलते हो कि अमेरिकन कंपनीज के सीईओ तो इंडियंस हैं। अगर ब्रेन ड्रेन नहीं होता तो सीईओ इंडियन होते नहीं होते ना। तो जो चीज़ आपकी आज प्राइड है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो ब्रेन ड्रेन था? और भारत में बहुत ब्रेन है, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। 3-4 लाख इंजीनियर पास होता है हर साल, सब तो अमेरिका नहीं जाते। आज आपने वो फर्टाइल ग्राउंड भारत में तैयार किया है कि लोग नासा छोड़ के इसरो में काम करना चाहते हैं, लॉकहीड मार्टिन छोड़ के डीआरडीओ में काम करना चाहते हैं, एचएएल में काम करना चाहते हैं। थिंग्स आर चेंजिंग। So, sir, I don't believe that going abroad and working there is anything bad. Please, if you have an opportunity, go it, but don't be a coolie. Don't be a tech coolie. $20 per hour वाला मत बनना, बस केवल इतना बोलूँगा। ये हुआ आपके क्वेश्चन का एक पार्ट। दूसरा पार्ट, आपने जो बोला पीएम बनने की बात, ऋषि सुनक पे आपका इंडिकेशन है। ऋषि भारतीय नहीं है, भारतीय मूल का है। सनातन को वो फॉलो करते हैं, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। राष्ट्र से मत देखिए उसे। सनातन तो यूनिवर्सल है। अफ्रीका में फॉलो कीजिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना यहां आ गए। ऋषि की कर्म भूमि और मातृभूमि ब्रिटेन है, भारत उनकी आध्यात्मिक भूमि है। कम से कम आपको तो ये खुश होना चाहिए वो भारतीय मूल के या सनातनी होने के बाद भारत से लिंक करके देखते हैं ना। हमारे यहां तो बहुत सारे तोपची हैं जो मक्का मदीना जाते हैं, उनको भी हिंदू बोला जाता है। यहां पर वो झंडा लेके पता नहीं क्या क्या नाचते रहते हैं। तो उनका तो मूल चरित्र ही नहीं है कहीं, हमारा कम से कम मूल तो है। तो सर बाहर जाना कोई बुराई नहीं है, मेरे बच्चों को यही है, जाओ। लेकिन हाँ, ये जरूर बोलूँगा कि विदेश में अब सूर्य अस्त हो रहा है। एम्बिशियस हो, अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करना जानते हो और मेहनत से डरते नहीं हो, तो भारत में आज इट्स अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। American dream is over, it is the Indian dream which has started now, and it is going to last for next 50, 70, 100 years maybe. My son got an admission at MIT, and I asked him, where you want to go, MIT or IIT? He said, पागल है, वहाँ डॉलर खर्च करेंगे, यहाँ इंडियन रुपए में काम होता है ना, अपन यही है। क्या करूं, बच्चे भी ऐसे ही हैं आज के। नेक्स्ट। हेलो। हाँ सर। सर मैं आपसे दो है, एक तो रोल ऑफ यंग बैठे हुए हैं। मैं एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर करीब 15 साल अपनी ज़िंदगी में काम किया, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। इवन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे भी काम किया और यहाँ भी किया है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया सर, बहुत पैदल चलना पड़ता है यार। सर मैंने तो खाली वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे किया है, पार्ट ऑफ इट, जिसके बेसिस पे आप सब रहते हैं वहाँ पे। बहुत पैदल उसके बिना तो चलता होता नहीं साथ में। मोदी जी को बोलना पड़ेगा कोई बैकडोर से कोई ऐसा पद दे दो जो गाड़ी में बैठ के सीधा फ्लाइट तक पहुंचा है। अरे मतलब मैं इसलिए बोल रहा था कि मेरी बहुत बड़ी टीम थी
और मैं अपनी टीम को एक ही बोलता था कि अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, अपने करेक्टर पे काम के साथ साथ अपने काम के साथ में न्याय से काम करो, सिंसियरली काम करो, काम से ही होगा और आप तेंदुलकर की तरह खेलोगे, बाकी चीज़ें आपके पास में आ जाएंगी। तो मेरा बच्चों को यही है, ज़िंदगी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के बाद में मैंने कभी भी एक पैसे की रिश्वत नहीं ली। मेरे जीवन के अंदर में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा बैंक में है, एक पैसे का ब्लैक नहीं है, एक पैसे का कैश नहीं है। और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पहचान सकते हो, उस स्ट्रेंथ पर खेलो, बाकी चीज़ें आपके पीछे पीछे भाग के आएंगी। एक बात नहीं, कछुए खरगोश की कहानी कितने लोगों ने सुनी है? सभी ने सुनी है। क्या सुनी है? कि जी एक रेस हो रही थी, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, सो गया, कछुआ काम करता रहा और जीत गया। यही सिखाया है ना? आगे की कहानी मैं बताता हूँ। जब कछुआ जीत गया तो खरगोश ने कहा भाई एक रेस फिर से हो गई, और ठीक है, फिर से रेस हुई। खरगोश भागा, कछुआ भी भागा, खरगोश जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि कछुए ने खरगोश ने पीछे की हुई गलती को दोहराया नहीं, बल्कि गलती से सीखा। गलती करना बुरा नहीं है, क्या गलती सीख रहे हो? ये युवाओं के लिए लेसन है। स्टोरी खत्म नहीं, अभी और आगे। कछुआ बोला भाई इस बार तो तू जीत गया, एक रेस और लड़ते हैं। बोला ठीक है, पर अगले नए रास्ते से लड़ेंगे, दौड़ेंगे। ठीक है, नए रास्ते से दौड़े, रास्ते में पड़ गई नदी। अब खरगोश तो रह गया, कछुआ निकल गया, जीत गया। ठीक है, तो अपनी कमजोरियों को समझा ही नहीं आपने। बिना कमजोरी और स्ट्रेंथ जाने कमिटमेंट मत कर देना कभी लाइफ में। नहीं, जैसे आजकल पार्क में बैठ के बोलते हैं मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, सितारे तोड़ लाऊंगा, क्या तोड़ लाऊं। अबे कॉफ़ी देने के पैसे नहीं है, चांद तोड़ लाऊंगा, कॉफ़ी तोड़ लाऊंगा। ऐसे कमिटमेंट मत करो। मैंने अपनी वाइफ को आज तक ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करा। मैं भाई, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं ऐसे वैसे कमिटमेंट नहीं कर सकता। स्टोरी खत्म ना, अभी एक और है। खरगोश बोला भाई फिर से चलते हैं, इसी रास्ते से चलते हैं, लेकिन अब टीम बना के दौड़ेंगे। तो खरगोश के ऊपर कछुआ बैठ गया, फटाफट कवर हो गया। पानी आया तो कछुए के ऊपर खरगोश बैठ गया और नदी पार हो गई। अपनी वीकनेस अपने टीम मेंबर में, अपनी वीकनेस को दूसरे की स्ट्रेंथ के साथ जोड़ो, तो रास्ता जल्दी भी तैयार होगा और सक्सेस भी मिलेगी। टीम के लिए इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि आप अपनी वीकनेसेस दूसरे की स्ट्रेंथ के साथ जोड़ लीजिए, एक होके काम कीजिए, फिर देखिए नतीजे तो बिंदास होंगे। मोदी ने क्या करा? मोदी की वीकनेस है, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने अपनी टीम बनाई। जयशंकर की एक स्ट्रेंथ थी जो यूटिलाइज नहीं हो रही थी, उन्होंने जयशंकर की स्ट्रेंथ यूटिलाइज करी। वो जाके कान के नीचे बजा के आते हैं अमेरिका के। एक नाम सुना होगा, एमजे अकबर। एमजे अकबर में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी जो इतने सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं करी। मोदी ने कहा आजा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर, तुम्हारे कार्य क्षेत्र मिडिल ईस्ट, काम क्या करना है? ओआईसी का चीड़-फाड़ करनी है। एमजे अकबर ने ओआईसी में चीड़-फाड़ करनी शुरू कर दी।
जिसका नतीजा था कि सुषमा स्वराज पहली महिला और भारतीय महिला जिन्होंने ओआईसी को एड्रेस करा। और जब ओआईसी की चीर-फाड़ एमजे अकबर ने कर दी तो एमजे अकबर को कैसे रोका जाए, तो 40 साल पुराना मीटू उठा के लाए उसके लिए। मीटू उसके बाद नहीं हुआ कुछ भी, एमजे अकबर के केस के बाद मीटू खत्म हो गया, आज कोई पूछता भी नहीं है। मीटू का मुख्य उद्देश्य एमजे अकबर को अपनी जगह से हटाना था, हटे। तो स्ट्रेंथ आज जो राम मंदिर है, जो 370 है, जो ट्रिपल तलाक है, एक भी देश में दंगे नहीं हुए, लाशें नहीं गिरी, सब खुश हैं, वो कम्युनिटी भी खुश है, आप भी खुश हैं, सब खुश हैं। इसकी जो रूट है वो एमजे अकबर है। कभी चाइनीज बैम्बू प्लांट करो, बीज डालो, कुछ निकलेगा ही नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ निकले ही नहीं। भाई बीज कर क्या रहा है अंदर बैठ के जमीन के? फिर 5-6 साल बाद निकलना शुरू करेगा तो इतनी तेज निकलेगा कि चढ़ता चला जाएगा। तो ये 5 साल कर क्या रहा था? वो बीज 5 साल अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, ताकि जो आगे ग्रोथ होनी है उसको सस्टेन करने के लिए जब तक जड़ें नहीं होंगी तो वो गिर जाएगा महल। अगला 1000 साल तक राम मंदिर रहे, 370 वापस ना आए, भारत प्रगति के रास्ते पे रहे, सारी कम्युनिटियाँ खुश रहें, सबकी प्रगति हो, उसके लिए 5 साल का होमवर्क था। और इसके लिए बहुत विभिन्न तरह की अपनी टीम में स्ट्रेंथ बनाई गई। एक दिमाग अरुण जेटली जैसा, एक दिमाग एमजे अकबर जैसा, सुषमा जी जैसा, राजनाथ सिंह जैसा है, मनोहर पारिकर जैसा, ये लेजेंड्स हैं। अगर अरुण जेटली अमर सिंह के साथ ना आते और उनको राज्यसभा की सीट नहीं दी जाती तो यूपी का चीर-फाड़ नहीं होता, और यूपी का चीर-फाड़ नहीं होता तो महाराज जी नहीं आते, और महाराज जी नहीं आते तो हम जैसे बोलते अरे भाई तुम हो गए गुजरात के, हम भी यूपी वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर दूसरा तो सिर्फ आपके लिए है कि मैं आपको 2013 से फॉलो कर रहा हूँ ट्विटर जी पे। सर। आपकी हर पोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हूँ, सब कुछ सुना हुआ है, सब कुछ पढ़, आपके यूट्यूबर्स के ऊपर जो भी आपने दिए सब सुने हैं। बहुत पुराना एडमायरर हूँ आपका, लेकिन लास्ट टाइम नहीं आ पाया था बिकॉज मेरी यहाँ पे IIT रुड़की से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो हमारा 40वां एलुमनी का उस दिन वो फंक्शन था, सेलिब्रेशन था। आपने बताया था मेरे को। और 40वां सेलिब्रेशन तो मैं आ नहीं पाया। मुझे को पता है उस दिन रुड़की का भी IIT रुड़की का भी मीट था। हाँ, मैं उसमें नहीं आ पाया था। कोई बात नहीं सर। और एक ही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था अपनी ज़िंदगी के अंदर में, जब आपका आइज़ का ऑपरेशन हुआ था, कि भाई आपने क्या कैटरेक्ट का लेंस रिप्लेसमेंट करवाया है जी। तो आपने आंसर भी दिया था, उसके बाद मैंने अपना करवाया। दैट इज़ द ओनली थिंग व्हिच आई कैन से। आई रीड एवरी ऑफ योर पोस्ट, ऑलमोस्ट 99%। आपको बिलीव नहीं होगा, जब वो डॉक्टर मेरे काट छाट कर रहा था ना आँख में एनेस्थीसिया लगा के, तो मैं डॉक्टर को जोक सुना रहा था सर, और वो बोल रहा था भाई हल्के बोल, हंसा रहा है, हाथ हिल जाएगा। मैंने कहा मस्त रहे। वो तो मैंने नहीं किया, लेकिन आई हैव बीन फॉलोइंग, सो आई नो। सर एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में इतना आई टॉनिक लिया है कि कैटरेक्ट हो गया। सर वही मेरे साथ में भी है। आज मेरे लंग्स, अब मैंने आई टॉनिक लेना बंद कर दिया तो मेरी आंखें सही हैं। मेरे 70% मेरे लंग्स भी आजकल काम करते हैं, बस 30% तो डैमेज हो चुके हैं साथ। भगवान बहुत एनीवे, मेरा एक और कनेक्शन है आपका गाजियाबाद से, बिकॉज माई इन-लॉज आर फ्रॉम गाजियाबाद एंड आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम देयर। थैंक यू सर। मैं भारत का हूँ, गाजियाबाद का नहीं। क्वेश्चन बच्चों से सवाल लेने हैं हमें। Good evening, sir. बेटा बोलो। It's a technological question actually. Yes, please. I am in second year. I'm doing CAC right now, and I was thinking, what are the scopes for AI and cybersecurity in India's future? बेटा, cyber security and AI have the future. They are the future.
The future wars are going to be fought on cyber. Rest everything comes secondary. The military and army and your navy, air force comes secondary. Cyber is the primary one. So your choice is very correct. Cyber security is the area to be in. Cyber security is going to be more AI enabled. So having an advantage of AI is always good. If you sometime get chance as a minor, do pick up a data science just for the introduction, not on an advanced stage, but just to understand the concept of data science. That would help you. But future is there, better. Don't even worry about it. My son is in CSE only. He's doing data science, AI, and cyber both. And the second one is a philosophical question. Sorry. Yes, please. How do you find purpose of life? How do I find? Purpose of life. I mean, you are achieved and you have found your purpose as Very improving. simple, beta. A dog, maybe on a street, get his 2 meals a day. We also get our 2 meals a day. Are we different from dog? Yes. Why we are different from dog? Because we have a purpose in life. What is our purpose in life? To make this place a better one, to help others, to serve the community, to serve the nation which has given you so much that you fly all over the world. When I came back to India, the thought in my mind was, I'm going back to serve my nation which has given me everything, which made me who I am in 29 years. The nation which made my signature an autograph. Don't you think it is my responsibility to serve the nation? That is what I am doing now. So I am inspiring youth, I am inspiring people. People say their outlook have changed, the way they see the things today after reading me, and I think that's the best compliment I can get, and that is the best reward and returns I get. Money is not everything. So purpose in life is always give back to the society. That is the ultimate purpose. Follow your dharma, whatever you are. Right? I am not binding you to a specific faith, but whatever you are, just follow your dharma. Dharma is very simple. People talk about rights. Like yesterday I posted something, some people started shouting about our rights, right of a woman, right of a lady. And my simple point was, we all talk about right. What about the duty? So the purpose in life is also duty. That differentiates us with animals. Huh? Thank you. Thank you, sir. Yeah. Sir, India is growing very fast. The GDP of India is probably on the 5th stage currently in global perspective. Sir, talking about India, we are having a rapid growth, but I would like to understand from you that what is the contribution of startup in that economic growth of India, and how shall we quantify it down the line for 5 years? The contribution of the startups, if you really see on a broader scale, when you start any organization or a company or a venture, let's say you start let's low down, I'm not talking about companies that has a high employment, but let's say you are just some food stall. You employ 2 people to work with you. You have a land in a village where you do your farming. You take out a small piece of land, construct 2 houses, 2 rooms with a good toilet, define it as village tourism, hire 2-3 people, a cook and a cleaner. You have provided employment. These people will, when they earn, they will spend, the consumption will increase, the GDP will increase. But GDP is not the only way to see Indian growth story. I have always argument with the Harvard economist, Hayward economist and all those people.
When I drive on a highway and I want a गन्ने का जूस, रास्ते में हाईवे पे मिलते हैं ना गन्ने के जूस वाले, खेत से गन्ना काट के लाए, आपको जूस पिलाया, आपने 20 रुपए दिए, निकल लिए। क्या वो ट्रांजैक्शन जीडीपी में रिकॉर्ड हुआ? ऐसे कितने ट्रांजैक्शन हैं भारत में? आप बी क्लास सिटी में चले जाइए, सी क्लास छोटे शहरों में चले जाइए, खेत से लोग सब्जी काट के लाते हैं, वहीं बेच देते हैं, जीडीपी में गया? वो तब जाएगा जब मोटा भाई के रिलायंस फ्रेश में सामान जाएगा, तब वो जीडीपी में ऐड होगा। तो भारत एक विविध नेशन है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं डिजिटलाइजेशन ऑफ करेंसी इज फाइन, बट इंडिया विल ऑलवेज हैव एटलीस्ट 20% कैश। यू कैनॉट रूल आउट कैश इन इंडिया। So, how do I see the perspective? Top 3 economies in the world. Why top 3 economies? I can define it in a very simple term. The number 1 economy in the world today, which is US, is a consumption-based economy. It is sitting on a debt of $30 trillion credit card debt. Buy it now, consume it now, extract it now in the morning, pay after 6 months. ठीक है ना? The second economy today in the world is the China, which is purely manufacturing based economy. Now if the consumption is reducing in America today, demand will go down. Who will suffer? China. What in the last 8 years India has done, we were consumption based economy. दिवाली की आ रही है तो लाइट्स चाइना से आ जाएंगी, गणेश जी चाइना से आ जाएंगे, सारी चीजें चाइना से आ जाएंगी. We were consuming. But in last 8 years we have converted ourselves to a manufacturing base. 22 phone manufacturers are there in the country. Most of the auto manufacturers are here in this country. The manufacturing is going leaps and bounds. But the beauty of India and uniqueness of India is that it is not just growing manufacturing, it also has the capacity to consume it. So we are not dependent on a second nation for any prosperity. This is why I say recession is a word for Western economy. It is not for India, which is Kautilya Arthashastra. And India is blessed to have, like, the automobile engine has a spark plug. India has 15, 16 kind of a spark plug. The biggest spark plug is Diwali. From a diya guy making diya to the guy making a 15 crore bungalow or a house, everybody made money. Record sale of cars, record sale of real estate, record sale of everything. Gold. खाखड़ा जलेबी खावे 300 करोड़ का यार तुम लोग. क्यों नहीं? जो देश का एक स्टेट 300 करोड़ का खाखड़ा जलेबी खा जाए 14 घंटे में, उस देश में कभी रिसेशन आएगा? और अभी तो दिवाली खत्म हुई है ना, अब शादियां आ रही है. ये दूसरा इकोनॉमिक इंजन है. वो खत्म होगा तो दिवाली होली आ जाएगी, उत्तरायण आएगा, और उसके बाद वो चलता. तो हमारे भारतीय इकोनॉमिक इंजन में इतने स्पार्क प्लग लगे हैं कि डंडा मार के रोकना चाहो तब भी नहीं रुकेगा. So don't worry about the GDP, right? This is only a Western concept. Thank you so much, sir. It was a great evening. ये हमारे युवा लोगों के पास सवाल नहीं है या कंफ्यूज हैं? सवाल है ना सर? सवाल है. बोलिए सर. सर मेरा नाम अनंत है और मैं 2B
पेरेंट बनने वाला हूँ। अभी मैं सिंगल हूँ, बट डेफिनेटली 2-3 साल में मैं पेरेंट बनने वाला बड़ी अच्छी प्लानिंग है, गुड। हूँ। डेफिनेटली बनना ही है सर। मेरा क्वेश्चन आपसे रिलेटेड ये है, वो आपने पेरेंट बनने के लिए जो दूसरा चाहिए वो ढूंढ लिया है, उसको भी अभी पेंडिंग में? ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया, गुड। आपने चरित्र, क्रेडिबिलिटी और कैरेक्टर और कंसिस्टेंसी का बहुत अच्छा उपयोग किया है। जैसे मैं आपको बताया कि मैं सिंगल हूँ, मैं जिसके साथ मतलब शादी करना चाहता हूँ, उसके मम्मी पापा या आज का हमारा पूरा पेरेंटिंग का जो सिस्टम है, वो पेरेंटिंग का सिस्टम हम जैसे यूथ को जज करते हैं विथ आपके पास गाड़ी है कि नहीं है, आपके पास घर है कि नहीं है, आपके पास आप कमाते कितना हो। बट एट द एज ऑफ 28 उनका एक्सपेक्टेशंस ये होता है कि हमारे पास एक मर्सिडीज हो या हमारे पास एक खुद का घर हो। इज इट फेयर ऑन अ यूथ? नो, इट इज नॉट फेयर। सेकेंड, आस्किंग टू एवरीबडी हु इज अ पेरेंट हियर, अगर आपको अपनी बेटी का शादी अगर बेटे से कराना है, फॉर एग्जाम्पल आई नॉट से दामाद बट आई मैं से बेटे। आपका क्वेश्चन समझ गया, लेट मी आंसर दिस। हमारे ज़माने में, हमारा ज़माना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 25 साल हो गए मेरी शादी को, होने वाले हैं, मतलब 1-1.5 महीने में। जिस दिन मेरी इंगेजमेंट थी, मैं अपने इन-लॉज के पास गया और मैंने उनको बोला मेरी जॉब जा चुकी है, सो यू आर मैरिंग योर डॉटर टू एन अनएम्प्लॉयड पर्सन। जवाब पता है क्या था? तेरे से शादी कौन कर रहा है, ये तो 2 परिवारों का मिलन है। आज की प्रॉब्लम ये है कि हम 6 महीने लिव इन रिलेशनशिप में टेस्ट करते हैं कि हमारे वेवलेंथ मैच हो रही है नहीं हो रही है। फंडामेंटल्स हम भूल चुके हैं परिवार में कि अगर वेवलेंथ मैच हो गई तो शादी का तो मजा ही नहीं है भाई। जब तक नेगेटिव पॉजिटिव अलग साथ ना हो तब तक अट्रैक्शन तो नहीं होता ना। अब दोनों पॉजिटिव होंगे तो डाइवोर्स बढ़ गए। सर, अगर आपके होने वाले गाड़ी, बंगला, घर ये सब पे हैं ज़्यादा एविडेंट, तो मेरे ख्याल से अभी वुड बी पेरेंट का सपना छोड़ के थोड़ा नया रास्ता देखने की कोशिश कीजिए, वो शायद ज़्यादा आगे जाएगा। क्योंकि मेरी और मेरी पत्नी के बीच में जो एक कॉमन चीज़ थी, बस केवल एक थी कि हम दोनों इंजीनियर हैं, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। अभी भी हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे मैं पहाड़ पे जाता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, मेरी बीबी कभी लटक लेती है मेरी जीप में, तो उसकी डेफिनेशन होती है कि हमें यहाँ एक्टिविटी करनी है, बंगी जंपिंग, ये जंपिंग, वो जंपिंग। मेरा क्या है, मेरी गाड़ी में एक चेयर पड़ी हुई है, इजी चेयर, मैं खोल के बैठ जाता हूँ। मेरा वेकेशन वो है, एक जगह बैठ के आराम से एक सिगार निकालो, एक सिंगल मॉल्ट का ड्रिंक लो, एंड अ बॉनफायर एंड एंजॉय द लाइफ। क्या कहते हैं उसे, मतलब अपनी आत्मा को शुद्ध करो, ज्ञान और लो, सोचो, विचारो। तो हमारे बीच में कुछ नहीं है, लेकिन हम इसलिए साथ हैं क्योंकि हमारे बीच में कॉमन कुछ नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे की चीजों को एंजॉय करते हैं। वो मेरे शांत स्वभाव को एंजॉय करती है, मैं उसकी चुलबुली हरकतें, इस उम्र में कूदना, मतलब यार टांग तोड़ी तो जुड़ेगी भी नहीं। Money is not the criteria to get married. Materialistic thing नहीं होनी चाहिए, विचार मैच होने चाहिए। सर, बट हम आज के सोसाइटी में तो ऐसे ही रहते हैं ना कि हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, टू बी बेटा, पेरेंट्स या होने वाले सर, जो भी वही तो मेरी कोशिश है ना कि इस सोसाइटी को, आज के बच्चों को ये चीज़ समझाएं, वो हम लोग नहीं करना चाहते हैं कि 25 साल की उम्र में मर्सिडीज लेने का वो मज़ा नहीं है जो 40 साल की उम्र में मर्सिडीज चलाने का है। सर, 40 साल की उम्र में जो इंसान मर्सिडीज चलाता है ना, वो एक ऑरा अलग होता है, और 25 साल की उम्र में जो मर्सिडीज चलाता है ना, वहां मेंटालिटी दूसरी होती है।
प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे सेलिब्रेटेड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बड़े डंका चोट मार के बोलते हैं 25 साल में अगर मर्सिडीज नहीं चलाई तो लाइफ क्या है, बर्बाद है। शायद सनातन पे ज्ञान देना तो सबको आता है, लेकिन उसको रिलेट करके समझाना। भगवान श्री राम पहले दिन अगर राजा बन जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते। वो 14 साल का स्ट्रगल था जिन्होंने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। या 25-26 साल की एज में बाइक पे घूमो यार, गर्लफ्रेंड को पीछे बिठाल के। आजकल तो वैसी वाली सीटें आती है ना, पीछे वाला ऐसा लगता है ट्रक की हाइट पे बैठा है, सीधा भी बैठना चाहे तो नहीं बैठ सकता, जबरदस्ती फेविकोल की तरह चिपकाएगा। मतलब हमारे कॉलेज टाइम में तो हम लोग तो ब्रेक मारते थे उस मोमेंट के लिए, आजकल ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल आ जाता है। नेक्स्ट, Last one. Yeah. Now is the last question. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Yeah. Give him the mic, please. Hello. Sir, India has achieved great success in its digital things like vaccination. हम देख लें इतना digital way में vaccination हुआ है. We can see the UPI things. एंड मतलब एस जयशंकर की जो बात आपने की, मैंने उनका ही एक इंटरव्यू देखा था जो जिसमें उन्होंने यूएस और इंडिया का वैक्सीनेशन ड्राइव को कंपैरिजन किया था। सो यूथ सर उस चीज़ को क्यों नहीं मतलब डिजिटल जो इंडिया इतना प्रोग्रेस कर रहा है उस चीज़ को क्यों नहीं देख के क्यों उस जगह ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, जो आपने सर एक एग्जाम्पल दिया इंस्टाग्राम पे जो वो चीज़ हो रहा है, मतलब दैट वाज माय क्वेश्चन सर। बेटा, दैट इज अ बेसिक इंस्टिंक्ट। You get attracted to such videos. हम लोगों पे सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। we have crossed that limit. So I understand that is, देखो विद्यार्थी जीवन को तपस्या क्यों बोला गया है? विद्यार्थी जीवन को तपस्या इसीलिए बोला गया है शास्त्रों में क्योंकि इस उम्र में बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। अगर उन समय आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकी जीवन में आपका चरित्र निखार हो जाएगा। हमारे बेटे जी का फ़ोन ख़राब हो गया तो वो छोड़ गए घर पे, नया फ़ोन लेके हॉस्टल चले गए। तो हमारा हम तो काम यही होता है सबके फ़ोन रिपेयर कराते फिरें, तो हमने करा दिया। खुराफाती दिमाग तो अपना पहले ही से बचपन से है। तो हमने फ़ोन ऑन करा तो उनके व्हाट्सएप वगैरह सब चालू हो गए क्योंकि सब वाईफाई पे कनेक्टेड थे। टपाटप मैसेज आने शुरू हो गए उनके इंस्टे दुनिया भर के। तो एक महिला उन पे मैसेज करती है, मतलब बच्ची, उसके बैचमेट, जय आई फॉलो यू एवरीवेयर, आई सी यू एवरी टाइम, आई लिसन योर टॉक, आई लिसन योर सॉन्ग, आई लिसन योर स्टेज परफॉर्मेंस, बट यू डोंट फॉलो मी। भाई साहब ने नीचे रिप्लाई दिया है बड़ा डिप्लोमेटिक, यस दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। सो देखो, कहते हैं ना कि जब सच अपने पैरों में जूते पहनता है तो झूठ दुनिया घूम के आ चुका होता है। गलत चीजें जल्दी बाहर आती हैं। आपको मेरे अच्छे काम याद ना हो, लेकिन कोई एक बात हो, कोई एलिगेशन हो, कोई बदनाम करने का चरित्र हो, वो आपको याद रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ का देता हूं। हमारी एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज 1000 में से 999 अटैक्स प्रिवेंट कर लेती है। आपको नहीं पता, लेकिन अगर एक चूक हो जाए तो आप पूरी एजेंसी को फेल कर देते हो, ये लिख के अपने सोशल मीडिया में इंटेलिजेंस फेलियर। लेकिन वही एक आतंकवादी 99 बार फेल हो जाए,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार पास हो गया तो वो सक्सेस हो जाती है। तो कई बार जब लोग लिखते हैं मेरे भी कमेंट के नीचे इंटेलिजेंस फेलियर, तो सही बात बताऊं, मन करता है पास में बुलाओ, कान के नीचे 2 खींच के मारो और उसके बाद पूछो तुम्हें पता है बेटा इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, काम कैसे होता है। तो बेटा गलत चीज़ें आसानी से भागती हैं, उनको कंट्रोल करना आना चाहिए। उन चीज़ों में ना जाओ, अपने आप को अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो, मेडिटेशन करो, अपना पर्पस से रास्ता मत भटकाओ। दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़। बाकी दिस इज़ अ कंज्यूमरिज्म वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ देयर। Sex is the most appealing thing. Porn is the oldest industry in this world. So they sell faster, and the biggest industry revenue-wise in this world is porn industry. ठीक है, करते हैं लोग. Make a choice. It's your life. Thank you very much. Now that person, yeah, you are the last. Please, that will be the last question before we express our gratitude. Yeah. 3 short questions. 3. How many years India will take to be 100% literacy with skillful mindset? Second question, is reservation still required in our education system? And third question, how many years we will be, our country will be dependent on FIIs, FDIs and FDIs, FIIs and FIIs? I got your point. Your first question, what is literacy? Degree is a literacy. If degree is a literacy, then how come Delhi appointed a chief minister which is an anarchist? And Bundelkhand and Purvanchal, which is very backward, has appointed a Maharaji. If literacy means degree, then how come the world best economist pushed India into fragile 5, whereas a current one who has done his degree in distance learning mode put India on a podium position? So what is literacy? एक किसान को अपनी किसानी में पीएचडी होती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठ के पीएचडी करने से किसानी नहीं आती है। सो लिटरेसी नीड टू बी डिफाइंड। केरला इज लिटरेट। हाउ मेनी IAS coming out from there? Is it literate? Right? FII question. India has already crossed the FIIs and now the dominance in market is DII. And because of the dominance of DII, the FII are not able to blackmail the government for a favorable policies. And because of that DII domination, even when the US stocks were blood red, India has marginally hit plus and minus. So the shield was built by Arun Jaitley, which the Harvard economist always say doesn't know economics, but eventually he built the best market today, and the market is growing. What was your third question? Reservation. I've been from the era where we have burned buses on reservation protest in Delhi. I drove the buses from IIT to Ames Chowk and burned it. I am the one who slapped VP Singh, the sitting Prime Minister. And I am also one who has given the blanket to Goswami when he lighted himself. He died few years back. Reservation by then is a huge fault line in India.
And this fault line was created only for the purpose of vote bank. How to remove it? It won't be removed now. The relevance of reservation would be reduced over a period of time. I think you need to understand a word Modi said very deeply. It is not the government business to be in the business. And that spells everything. That means the future government as we grow would be smaller, efficient, sharper. Government is also not a recruitment agency. Once these things start coming in, the reservation will start getting diluted. And I can say over the next, not 5 years, 15 years, nobody will talk about reservation. The starting is done. Agniveer, Railveer. There is a program started by Railway of taking people and training. What will they do with them? They will absorb some, the rest for the market. The same Agniveer philosophy. It will start coming in every field of government. PUCs are competitive. Today, the same HAL which couldn't make Tejas for 30-40 years, now rolling out third generation in 8 years. The same DRDO who never used to do anything, today exporting arms. Once the competitiveness comes in with PUCs, the reservation will start diluting. And there is a concept that, okay, in IIT, in MBBS, in NEET, and reservation takes a lot of seats. I agree it takes a lot of seats. But there is another statistics which you haven't seen. 65% of the reserved people who take admission leave the course in second year. Be it MBBS or be it your in IITs or engineering colleges. That is stats need also to be considered. So don't look one side, always look three-dimensional. Reservation, no government can pass a resolution and throw it out in a day. It had to dilute and dissolve into the society. That will happen when the relevance will go down, and the efforts are that the relevance today goes down. The more entrepreneurs comes in the market, the more private manufacturing comes in the market, the reservation point of view is going down and down. If you see even defense production, which is one of the biggest sector, today maximum defense production are by private companies. The quality has overtaken मेरे बाप का राजा. So if you have a quality, fine. ये तुम्हारे बाप का राज नहीं है. Okay, thank you very much.